Hello and hi everyone. Welcome back to my channel. This is a channel on where I take an hour session on various educational subjects. So today's session is on class 7's ICSE geography, and this is Simran Priya. I welcome you back to my channel. Now what is our today's discussion on? Our today's discussion is on chapter 10 Europe part B. This is this is from the book Middle School Geography, Frank EMU Books, and this is an ICSE curriculum that we are discussing on. The contents that we will be discussing today is physical features. Now, yesterday we have done the earlier part, the political division and all of that. Today, आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे physical features और हम यूरोप में यूरोप का चार physical feature is very important. There is 4 physical division in Europe. With that, we will see distinctively जो हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे. सबसे पहला है नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड. सबसे पहला is Northwest Island, the second is the Central Plain, and the third is the Central Highlands, and the fourth is the Alpine Mountain system. Now what will happen कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि we will discuss कि what is a highland. Highland क्या होता है, plains क्या होते हैं, where is the central highland, where is the alpine mountain system, और इसे mountain system क्यों कहा गया है, not only alpine. So we will discuss that, and then we will move on to the rivers and lakes. So these are the topics that we are going to discuss today. Okay, let's move forward. Before starting my session, let me introduce myself first. My name is Simran Priya and I have done my graduation and my master's from Delhi University. Currently, I'm teaching on in a school named Carmel School, and this is my online platform where I am extending my NGO's work. So moving on, let's begin with our today's session. Are you guys excited? Now let's move forward. Now, let me check. Please tell me, am I audible and visible? Please write in the chat box that I am audible or visible to you. So, can I start my chapter lesson from the physical feature? क्या मैं आपको audible or visible हूँ? अगर हूँ तो please write in the chat box. Okay. So yes, I got. Thank you, Janvi. Thank you, all of you. So, Anu Priya Raj, Sonu Raj, hi. Then we have Richa Singh, hi. Nilesh Ranjan, yes, hi. Ranjan Sharma, Prerna, Sujit, Anupriya, Devjani, hello Anjali, hello everyone. Welcome back. Now, we will be starting with the physical features. Now, the सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि यूरोप को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका 3 फिजिकल इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं क्या. पहला, that I have discussed earlier also, कि ये एक पेनिनसुला है. What is a peninsula? Peninsula is a land that is covered by water on major side of it. So as you can see, this is Europe. This is a map of Europe. और आप देख सकते हो ऊपर में we have Arctic Ocean. Right? We have Arctic Ocean, ऊपर में Atlantic Ocean. Here we have Mediterranean Sea in the south, Black Sea here, Caspian Sea here. So this particular content is covered by this particular content is covered by oceans and water bodies on 3 major sites, right? That's why it has a peninsular appearance. So ये एक peninsula की तरह दिखता है. Second important point is, अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो it is highly indented and irregular coastline. Now first understand what is a coastline. So the area near the coast of any river,
what or any water bodies, whether it is a river, sea, ocean. So उसके बगल के लैंड को, उसके बगल के एरिया को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं. आप अगर ध्यान से देखो, एंड इफ वी सी नॉर्वे, वी कैन सी कि जो कोस्ट लाइन है वो प्लेन कोस्ट लाइन नहीं है, वो बहुत ज्यादा इरेगुलर ब्रोकन कोस्ट लाइन है. Understood. So that's why it has a highly indented, broken, irregular coastline. Second feature आपको clear हो गया. Third feature is not very high altitude, reflecting its old age. ये जो यूरोप है, इसके जो लैंड्स हैं वो बहुत ऊंचे नहीं है. नाइदर द माउंटेन्स आर वेरी एट हाई एल्टीट्यूड्स पे है, और ना ही कोई लैंड का एरिया बहुत सी लेवल से बहुत ऊंचे लेवल पे, ऐसा नहीं है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस शोज इट्स ओल्ड एज, कि ये कब से चला आ रहा है. ये बहुत पहले से यूरोप का लैंड इज वेरी ओल्ड एंड इट इज फ्रॉम द ग्रेट आइस एज से है. इंटेंडेड मतलब या इरेगुलर मतलब होता है रफ. इंटेंडेड मतलब रफ और ब्रोकन. Okay, I guess this is clear now. So, moving on, the four physical division of Europe. Now, जब हम लोगों ने physical feature इसका समझ लिया, क्या है? पहला peninsular appearance है, दूसरा इसकी coastline क्या है? टूटी फूटी है, बहुत उबड़ खाबड़ मची हुई है, right? और तीसरा इसका क्या था? इसका तीसरा था कि इसकी यहाँ पर कोई भी हाइट पे नहीं है लैंड. द लैंड इज बहुत सी लेवल के ही लेवल पे है, या उससे थोड़ा सा ऊपर है, माउंटेन बहुत ज्यादा हाई नहीं है. नाउ कम्स द फोर फिजिकल डिविजन ऑफ यूरोप. चार मेजर फिजिकल डिविजन यूरोप के क्या है? पहला इज नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड. व्हाट इज अ हाईलैंड? Highland is a land or mountain that is above the land surface and somewhat above the sea level. Land or mountain जो थोड़ा सा क्या है? above है sea level से. So that is a highland. Understood. Then comes the central plain. What is a plain? Plain जहां पर क्या है? हाईलैंड्स हमें नहीं मिलते. प्लेन समान समतल जमीन मिलती है और जो उपजाऊ होती है, जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर माउंटेन्स पे नहीं कर सकते, हम लोग प्लेन्स पे एग्रीकल्चर करते हैं. सेटलमेंट्स प्लेन्स पे होती हैं, इंडस्ट्रीज प्लेन्स पे बसाए जाते हैं. तो हमारे पास क्या है? सेंट्रल प्लेन है. तो अगर यूरोप को हम ऐसे डिवाइड करें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. ओके, सो हमें नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाईलैंड. सो हमें यहाँ पर मिलता है हाईलैंड्स. द सेंट्रल प्लेन, वी हैव सेंटर में हमें प्लेन्स मिलते हैं. देन यहीं पर सेंटर के जस्ट साउथ में हमें यहाँ पर थोड़ा सा माउंटेन मिलता है, दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स. एंड देन कम्स द अल्पाइन माउंटेन सिस्टम. एल्प्स का माउंटेन सिस्टम हमें यहाँ मिलता है. ओके, okay, now so I would say that one of my student Anukriti has asked me a question. Anukriti has asked me a question. Highlands or mountains that is above sea level? Yes, highland is a mountain that is above sea level. Very good, Miss. Europe is surrounded by oceans and seas in the south. What is the answer? Yes, Europe is surrounded by three water bodies, and in the south it is surrounded by two water bodies, that is Mediterranean and the Black Sea. In the south we have Mediterranean and the Black Sea. As you can see, Mediterranean and the Black Sea in the south, right? अब मैं आपको क्या बोल रही थी? मैंने आपको बताया चार फिजिकल फीचर्स या चार फिजिकल डिवीजन. फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट में, यहां पर हमें मिलता है नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, दैट इज नोन एज द स्कैंडिनेवियन शील्ड और स्कैंडिनेवियन लैंड. नाउ कम्स द central plain, that is also known as North European plain. Okay, moving on, we have सेंटर के नीचे जस्ट वी हैव सेंटर हाईलैंड, जो है ये वाला एरिया सेंटर हाईलैंड. और उसके बाद हमें मिलता है अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, जो ये है, राइट? सो दीज आर द फोर थिंग्स.
ओके, मूविंग ऑन, इंटेंडेड बच्चा, मैंने इंटेंडेड का मतलब बताया, दैट मीन्स रफ, ब्रोकन, ओके, टूटा हुआ उसका कोस्ट लाइन है, अंडरस्टूड। अब चलिए आगे करते हैं। स्कैंडिनेवियन हाईलैंड जो है वो कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। दिस इज आवर स्कैंडिनेवियन हाईलैंड। दिस एरिया plus this area forms the Scandinavian highland area, understood। then comes the highland, मतलब आप समझ गए, highland मतलब कोई भी लैंड या माउंटेन जो सी लेवल से थोड़ा ऊपर है। then comes the vast tundra region। where is the tundra region? tundra मतलब क्या होता है? treeless region। क्या होता है tundra मतलब? सॉरी, tundra मतलब होता है treeless region। ओके, ट्रीलेस रीजन हमें यूरोप में कहा मिलती है? हमें ट्रीलेस रीजन, आपको पता है ये रशिया है, हमें ट्रीलेस रीजन यहां पर मिलती है। सो दिस इज द टुंड्रा रीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज टुंड्रा रीजन? बिकॉज यहाँ पर पेड़ नहीं उग पाते। क्यों नहीं उग पाते? इसके ऊपर में हमें यहाँ पर आर्टिक ओशन मिलता है ना। आर्टिक ओशन की ठंडी से या फिर ये जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन में चला जाता है। आप लोगों को मैंने जोन्स पढ़ाए थे, हम लोगों का यूरोप किस में है? टेम्परेट जोन में है ना। ऊपर वाला बस एरिया यूरोप का कहाँ चला जाता है? फ्रिजिड जोन में चला जाता है। इस वजह से उस एरिया में पेड़ नहीं उग पाते, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टुंड्रा रीजन। Understood everyone? Yes. Moving on comes the Great Central Plain of Europe. Great Central Plain Europe का कहाँ है? To the south of the Highland. Scandinavian Highland के south में. This is the Great European Plain. राइट, प्रेनीज माउंटेन से लेकर यूरल माउंटेन के बीच में हमें क्या मिलता है? ग्रेट सेंट्रल प्लेन। Okay, now this plain is densely populated. Okay, this plain is densely populated. Moving on, moving on, it has a highly industrialized, this area is highly industrialized। पहली बात, यहाँ पर population बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? population बहुत ज्यादा है क्योंकि ये प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग की जा रही है। इस वजह से लोग आकर यहाँ पर सेटल होते हैं और इस वजह से यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। और इस जगह पर ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज बैठाई गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज हम माउंटेन पे जाके नहीं बैठा सकते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। नाउ दिस मेक्स यूरोप the third most populous continent in the world. This makes Europe what? The third most populous continent in the world. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है। Okay, now ये तीसरे नंबर पे यूरोप आता है, थर्ड पॉपुलस। तो आप लोग वंडर करोगे पहले नंबर पे मैम कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, जहां सबसे ज्यादा आबादी है। पहला एशिया, सेकंड इज अफ्रीका एंड थर्ड इज यूरोप। हालांकि यूरोप दूसरा सबसे छोटा जगह है, लेकिन यहाँ की आबादी तीसरे नंबर पर आती है। अंडरस्टूड एवरीवन? Now, moving on, this is the map where you can see the North European plains very clearly. Okay, North European plains आप लोग देख सकते हो, और इस प्लेन में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ इंडस्ट्रीज बैठाई जा रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ये यूरोप को बना देता है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, थर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। फर्दर साउथ में हम जाएंगे तो हमें मिलेगा स्पेनिश प्लेट्यू। हमें क्या मिलता है फर्दर साउथ में? स्पेनिश प्लेट्यू। कहां पर है ये स्पेनिश प्लेट्यू? दिस इज द स्पेनिश प्लेट्यू। यहाँ स्पेन है ना, तो दिस फॉर्म्स द स्पेनिश प्लेट्यू। आप लोग अब सोच रहे होंगे व्हाट इज अ प्लेट्यू मैम? प्लेट्यू इज अ स्मॉल एलिवेटेड लैंड, जो अगर हमारा ये लैंड है इससे थोड़ा एलिवेट होकर अ फ्लैट सरफेस is known as a plateau. Okay, table like surface
को प्लेटो कहते हैं। अनुकृति, आबादी मतलब पॉपुलेशन, यस ऑफ कोर्स आबादी मतलब पॉपुलेशन। Vedika, I'm sorry I missed your question, you can ask me once again. Yes. So, plateau. Very good, Janvi. Yes, it is a tabletop highland is known as plateau. टेबल टॉप हाईलैंड मतलब टेबल टॉप जैसे हमारा फ्लैट होता है ना, वैसे ही फ्लैट हाईलैंड, थोड़ा सा उठा हुआ फ्लैट हाईलैंड को हम लोग प्लेटो कहते हैं। हमें साउथ में स्पेन में स्पेनिश प्लेटो मिलता है। नाउ स्पेनिश प्लेटो सेपरेट्स फ्रॉम द फ्रांस बाय द प्रेनीज माउंटेन। Yes. Now, आप देखो यहाँ पर, let me erase this first and then I will tell you कि यहाँ पर हमारा क्या है। This is our Spain, है ना। यहाँ पर हमें प्रेनीज माउंटेन मिलता है and this is our France. So, स्पेन को फ्रांस से अलग कौन कर रहा है? ये प्रेनीज माउंटेन कर रही है। ओके ओके सो ये प्रेनीज माउंटेन कर रही है। मूविंग ऑन टू द ईस्ट आर द एल्प्स। ईस्ट में हमारे क्या है? ईस्ट में हमारे एल्प्स है। अब आप ईस्ट में देखो, ईस्टवर्ड अगर हम जाएंगे, इसके ईस्ट में हमें क्या मिलता है? एल्प्स मिलते हैं। वेरी गुड। गिविंग वे टू द प्लेन्स ऑफ बोहेमिया। बोहेमिया हमें कहाँ मिलता था? सेच रिपब्लिक एक कंट्री है जहां पर हमें क्या मिलता है? वो एरिया प्लेन है, वो माउंटेनस एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एल्प है। दिस इज आवर सेच रिपब्लिक जो प्लेन एरिया है, जिसको हम लोग बोहेमिया कहते हैं। और इसके बाद हमारा कार्पैथियन माउंटेन यहाँ पर है। सो इट इज सेड कि जैसे हम लोग ईस्टवर्ड जाते हैं, सो उसमें हमें एल्प्स मिलता है, फिर प्लेन्स मिलते हैं बोहेमिया के, देन कार्पैथियन माउंटेन। ओके वेदिका, व्हाट आर द कंट्रीज? व्हिच कंट्री इज नॉट स्कैंडिनेवियन? नाउ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हमें स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड अलोंग विथ this area is together forms the Scandinavian countries. Okay, we will discuss this in elaborate. Okay, now moving on, to the east are the Alps giving ways to the plains of Bohemia. ठीक है, ये plains of Bohemia को, Bohemia क्या है? Czech Republic है, आप लोग जानते हो। Beyond which is the Carpathian Mountain. Okay, moving forwards, the main rivers that flows in Europe are, कुछ मेन रिवर्स है जो यूरोप में बहते हैं, वो क्या क्या है? दैट इज राइन, दानुबे, वोल्गा, रॉन, ड्निस्टर एक्सेट्रा। ओके, यस। Moving on, the northwestern highland. Now comes जो वेदिका क्वेश्चन पूछ रही थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला. So the northwestern highlands forms the Scandinavian countries. Now let's take an example. This consists of highland system running from Finland through Norway to Scotland. ये क्या है? एक हाईलैंड सिस्टम है, जो एक थोड़ा एलिवेटेड हाईलैंड सिस्टम है, दैट इज माउंटेनस सिस्टम है ये। ठीक है, माउंटेन्स हम लोग बोल सकते हैं, माउंटेनस सिस्टम है जो फिनलैंड से होते हुए, नॉर्वे से होता हुआ स्कॉटलैंड की तरफ जाता है। फिनलैंड, यू कैन सी हियर, फिनलैंड से होते हुए नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे से होता हुआ स्कॉटलैंड, दिस इज स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड, यहाँ पर आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, जहां पर हमें नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स मिलते हैं। ओके, नाउ दीज आर अमंग ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स ऑफ यूरोप। ये क्या है? सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप। ओके, मूविंग ऑन, दिस इज मेड अप ऑफ ओल्ड एंड हार्ड रॉक्स। क्योंकि ये ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है, तो ये किससे बना हुआ है? ये बहुत पुरानी और मजबूत रॉक से बना हुआ है।
ठीक है। Now these mountains were covered by thick sheets of ice during the Great Ice Age. जो एक Great Ice Age आया था उस टाइम पे क्या हुआ था, दिस ये यहाँ की जो माउंटेन्स है, इस एरिया में जो हमें माउंटेन्स मिलते हैं वो एक बहुत मोटा परत आइस का उस पे बैठ गया, ठीक है। ओके ना, ओके बैठ गया ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग ऑफ द हाइट, और इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से जो हाइट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, अंडरस्टूड, कम हो गई इसकी हाइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ राउंडेड हिल ड्यू टू द आइस इरोजन। अब आप देखो, पहला हमारा माउंटेन ऐसा था, ठीक है, इस पे एक बहुत मोटा परत किसका जम गया, आइस का जम गया, इसके वजह से, और जब आइस इरोजन हुआ, जब आइस पिघल गई, तो इस हिल का टॉप कैसा हो गया, इस हिल का टॉप चपटा हो गया, राउंडेड हो गया, नोकीला नहीं रहा, और इसकी हाइट भी क्या हो गई, कम हो गई। Now one question is being asked that Scandinavian countries, now understand one thing बच्चा, एक चीज आप लोग समझो, एक होता है हाईलैंड, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाईलैंड्स, ठीक है। जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूछा जाए तो आप लोग सब लोग सही बोल रहे हो, आइसलैंड, ये सबको आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डाल दोगे, ठीक है, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सबको आप डाल दोगे। लेकिन जब आपसे स्कैंडिनेवियन हाईलैंड पूछा जाए, हाईलैंड मतलब जहां पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हमें मिलते हैं, तो वो कहां पर मिलेंगे, जहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, तो वहां पर हमें कहां कहां मिलता है, फिनलैंड से लेकर नॉर्वे से लेकर स्कॉटलैंड तक मिलता है। यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे डेनमार्क, आइसलैंड नहीं लिखेंगे, ओके, अंडरस्टूड everyone? Now I will Akhilesh Kumar, I will be coming on the highest peak. Now I please wait, have patience a little. Now I know आप लोगों को भी हड़बड़ी हो रही है जल्दी जल्दी खत्म करने की। I need to be pouring my heart and soul to this session, right? So आप please patiently एक बार सुनो पूरा चैप्टर, और फिर कुछ दिक्कत हो फिर पूछना, मैं आपके लिए वेट करूंगी। I will give you 5 minutes at the end to ask any question that you want, okay? मूविंग ऑन, ये क्या करता है, इस माउंटेन को, ये जो मोटी परत आ गई थी, इस माउंटेन का हाइट कम कर देती है, और इस माउंटेन के हिल टॉप को गोल बना देती है, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन, द हाईली रग्ड, now you must be wondering what is rugged. Rugged means not even or uneven or broken, okay, not smooth. Highly rugged coastal areas of the northwest have deep glacier valleys. यहाँ के जो कोस्टल नॉर्थ वेस्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं, आप यहाँ पर देखिए कोस्टल एरियाज नॉर्थ वेस्ट के, ये देखिए कितना ये ऐसा टूटा फूटा है ना, हम इसे प्लेन नहीं देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए टूटा फूटा है, पूरी तरीके से टूटा फूटा है। सो ये जो कोस्टल एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा टूटे फूटे हैं, ब्रोकन है, वो क्या करते हैं, वो डीप ग्लेशियर वैलीज बना देते हैं। What is a glacier valleys? अब अगर मेरा प्लेन ऐसा है, ओके, ऐसा मेरा टूटा फूटा प्लेन है, ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर लैंड है, दिस इज अ लैंड, दिस इज अ लैंड, दिस इज अ वाटर बॉडी, ओके। सो ये क्या बना देगी, ये एक वैली बना देती है, ये क्या बना रही है, हाईली हैव अ डीप, बहुत गहरी ग्लेशियर की वैली बना रही है, have been drawn and filled by sea water। और ये वैली क्या होता है, कोई भी सी वाटर के आसपास का एरिया इज वैली। सो इस आसपास के एरिया में क्या होता है, सी वाटर कभी कभी फ्लडेड हो जाता है, भर जाता है, और वो पूरी तरीके से उसको डुबा लेता है, ओके। नाउ दीज डीप इनलेट्स
ये जो घुसी घुसी इनलेट्स है, इनलेट्स मतलब ये जो डीप इनलेट्स है, ऐसा ऐसा यू कैन सी इन द मैप, इफ आई विल शो यू इन द मैप, अगर आप कहीं पे भी देखो, जैसे कि लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू प्रॉपरली कि वेयर इज डीप इनलेट्स. ओके, now look at the map properly. ये देखो, ये जो ये गहरा गहरा ऐसे करके ये गहरा हुआ है ना, अंदर में जो अंदर तक घुसा है ये गहरा, सो ये क्या होता है, ये गहरा गहरा पार्ट फॉर्म्स द इनलेट. ओके, दिस गहरा गहरा पार्ट फॉर्म्स द इनलेट. और आप ये देखोगे पूरे तरीके से हमें इस टाइम पर मिलता है. और इसी डीप इनलेट्स को विद स्टीपली राइजिंग साइड्स, जिसके साइड्स थोड़ा थोड़ा जमीन सी लेवल से थोड़ा सा ऊंचे हैं, थोड़ा सा, अगर हमारा सी यहाँ पर है तो ये लैंड कहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, तो वो इसे हम लोग कहते हैं फ्रिजॉइड्स या फ्रॉड्स. Okay, frauds. Now, frauds are responsible for the highly indented coastline. Indented means broken coastline. Understood, everyone? Please try and focus on what I am teaching. Do not focus on what you must ask. अभी ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और अगर आपने पहले का पार्ट नहीं किया है, go and watch part A of this particular session. You will have a clearer understanding. I am giving you an assurance कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. Okay, moving on comes the central plain. The second was the central plain. Now central plain कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट माउंटेन से जस्ट हम लोग साउथ में थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंस मिलता है प्लेन का. ओके, प्लेन समतल जमीन का ऑन दी अर्थ. नाउ दिस इज नोन एज द सेंट्रल प्लेन ऑफ यूरोप, और इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन. अंडरस्टूड. मूविंग ऑन, नाउ आप लोग देखो, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर हमें क्या मिला था, स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स मिल रहे थे, है ना. यहाँ पर हमें स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स मिल रहे थे. इसके ही हम लोग साउथ में आते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन मिलता है. Okay, moving on, the vast triangular plain extended right across Europe. ये जो प्लेन है, जो एक लंबा सा यूरोप के पूरे लंबे हिस्से में स्प्रेड होता है, वो कहाँ कहाँ से है, प्रेनीज माउंटेन से लेकर यूरल माउंटेन के बीच में. नाउ यू कैन सी इन द मैप, अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं, दिस इज स्पेन, राइट. ये क्या है, हमारा स्पेन है, आप लोग बहुत बकायदा जानते हो. ये एरिया यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेनीज है. यहाँ पर हमारे कौन से माउंटेन है, प्रेनीज माउंटेन है. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरल माउंटेन, ये देखिए, ये है हमारा Okay. Okay, now coming back, I'm really sorry I was disconnected, and thank you so much for staying. Now, am I audible and visible now? Can you please write it down and tell me, am I audible and visible to you? Please hurry up, fill up the chat box with telling me yes, I am audible or visible or not. Go ahead. Okay. Yes, okay, Anupriya Raj, please, thank you so much for telling me that yes, I am audible. Now listen, focus on. Thank you, Aprajita, Vedika, Anupriya, Pakhi, Alicia. Thank you so much. Now moving on, the vast triangular plain that ran from ये जो vast हमारा triangular plain है, जो Central European का plain है, वो कहाँ से कहाँ तक है? From the Pyrenees mountain to the Ural mountain. ठीक है, हमारा ये क्या था, स्पेन था. यहाँ का ये जो पार्ट लटका हुआ ये स्पेन है. ठीक है, दिस इज द प्रेनीज, ये क्या है, प्रेनीज है. अंडरस्टैंड दिस इज द प्रेनीज माउंटेन. ठीक है, ये प्रेनीज माउंटेन है. हमारा यूरल माउंटेन कहाँ पर है, दिस इज आवर यूरल माउंटेन.
ये हमारा साफ साफ यूरल माउंटेन दिख रहा है। इस दोनों के बीच में ये जो एक्सपेंस है, ये पूरा क्या बनाता है? दिस फॉर्म्स द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन और द सेंट्रल प्लेन। ओके, मूविंग ऑन, द प्लेन आर बिल्ट ऑन, कोई भी प्लेन कैसे बनता है? बाय द सिल्ट डिपोजिशन ऑफ द रिवर। अब आप देखोगे कि इस प्लेन में बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स क्या करती है? ये रिवर्स क्या करती है? ये रिवर्स hello, can you please tell me, is I am visible, am I audible and visible? I'm really sorry for the disconnection. It was a network issue, so I'm really sorry for that. Now, please tell me, am I audible and visible to every one of you or not? I will go back and I will continue from the map itself. Uh, Okay, thank you so much, Anjali. Thank you so much, Janvi, Shreyashi, Preeti, Mahi, Anupriya, Sunset, Devjani, Sujit. Thank you so much, everyone. Reena Sinha, everyone. Thank you so much. Now, we will be start doing from here itself. जहाँ से video pause हुआ था. I'm really sorry for the disturbance. Now, let's see this. ये जो वास्ट ट्रायंगुलर प्लेन है, ये प्रेनीज माउंटेन से लेकर यूरल माउंटेन के बीच में है। अब आप इस मैप में एक प्रेनीज माउंटेन को लोकेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। दिस इज स्पेन, राइट? दिस इज व्हाट? स्पेन। अब ये क्या है? हमारा फ्रांस था। इस दोनों के बीच में हमें प्रेनीज माउंटेन मिलेगा, तो बना दो इस दोनों के बीच में प्रेनीज माउंटेन। ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रेनीज माउंटेन। Okay, this is our Pyrenees mountain. Moving ahead, we have Ural mountain here. राइट, सो इस दोनों के बीच का जो ये एरिया है, दिस इज अ ट्रायंगुलर एरिया जो क्या बनाता है? जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स बनाता है, एंड ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्लेन। अंडरस्टूड? अब कोई भी प्लेन कैसे बनती है? कोई भी प्लेन रिवर के द्वारा लाई गए सिल्ट से बनती है, और दूसरा ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए डिपोजिशनल मटेरियल से बनती है। ओके, सिल्ट क्या होता है? अगर आप देखो, अगर कोई भी रिवर फ्लो कर रही है, ओके, रिवर यहां से फ्लो कर रही है, इसके पास का ये एरिया, इसके पास का ये एरिया है। जब भी रिवर में फ्लड आएगा, रिवर के नीचे समतल में जो मिट्टी जमी हुई है, वो मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी, इस लैंड में आ जाएगी, एंड इट विल मेक द लैंड वेरी वेरी फर्टाइल। ओके, एंड सो प्लेन किससे बना है? रिवर के द्वारा लाई गए सिल्ट से बना है। इसीलिए प्लेन्स क्या होते हैं? दे आर वेरी फर्टाइल। What the plains are? They are very fertile, and they are very fertile, and they are extremely please check your connection, bacha, as I can see that my video is running very smoothly. Please check all your connections. आप लोग प्लीज जाके देखो कनेक्शंस को, ठीक है? अगर तब भी मैं रुक रही हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो, अगर सबको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो, ठीक है? प्लेन्स इसलिए क्या होती है? बहुत फर्टाइल होती है, और अगर वो बहुत फर्टाइल उपजाऊ होगी तो दैट मीन्स इट इज हाईली सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, मूविंग ऑन, नाउ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग द प्लेन। मैंने अभी बताया कि यूरोप में हमें बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं, जैसे कि वी हैव वोल्गा। वोल्गा रिवर जो है, ये देखिए वोल्गा रिवर, you can see the Volga river. We have Don, we have Dnieper, we have Danube, we have Aldo, Elbe, Rhine, Po, Rhone। ये सारे रिवर्स क्या हैं? हमें इतनी ज्यादा रिवर्स मिलते हैं, इसीलिए क्या होता है? इसलिए ये एरिया क्या है? ये प्लेन वाला एरिया इज वेरी फर्टाइल, और यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। Understood, everyone? Now moving forward. Now the European plains are not continuous.
ठीक है, यूरोप की जो प्लेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पूरे जगह पर प्लेन ही मिल रहा है और सब जगह एग्रीकल्चर किया जा रहा है, नहीं, बीच बीच में वी फाइंड some broken lands. Okay, the surface is broken by the ancient blocks which rose up to low height. किसके द्वारा ये ब्रोकन किया जा रहा है? बीच बीच में हमें कहीं कहीं पर कुछ हाइट के लैंड्स मिलते हैं, कहीं कहीं पर कुछ हाइट के हमें लैंड्स मिलेंगे जो क्या बना देती है, जो एक प्लेन को पूरे समान तरीके से प्लेन नहीं रहने देती। ओके, अब ये जो लो हाइट के जो ब्लॉक्स उठते हैं वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते, ये बस 300 मीटर अबव सी लेवल्स के होते हैं। ओके, वंस अगेन आई विल डू कि यूरोपियन प्लेन्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो पूरी तरीके से ऐसे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन लैंड है, फिर यहाँ पर थोड़ा एलिवेटेड है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसे रहते हैं उसके लैंड, ठीक है, क्योंकि उसको क्या होता है, एंशिएंट ब्लॉक्स रोज करती है फ्रॉम द लो हाइट। Okay, now the average elevation is over 300 meters above the sea level. Understood? Moving on, the smaller area of low-lying hills includes the central Russian uplands. Okay, let's deal with this. जो लो लाइंग एरियाज है, जो लो हिल्स है, जो बहुत हिल माउंटेन्स नहीं है, जो छोटे छोटे हिल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो सेंट्रल रशियन अपलैंड्स बनाते हैं। लेट अस सी वेयर द सेंट्रल अपलैंड्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर दिस एरिया, इस एरिया में हमें सेंट्रल अपलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, रशिया का सेंट्रल अपलैंड्स मिलता है। मूविंग अहेड, यहाँ पर हमें कुछ हिल्स मिलते हैं दैट इरोडेड इनटू स्मॉलर बेसिन, और वो क्या बना देती है, सम स्मॉलर बेसिन्स बना देती है। ओके, जैसे कि द पेरिस बेसिन, द लंदन बेसिन, प्लेन ऑफ लंबॉर्डी दैट इज इन इटली, लो लैंड्स ऑफ Andalusia that is in Spain, Great Hungarian Plain and Wallachia Plain in Romania, ठीक है, ये सारे कुछ बेसिन्स और प्लेन्स हैं जो हमें इन हिल्स के साथ, ये लो लाइन छोटे छोटे हिल्स के साथ मिलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, एलिवेशन मीन्स थोड़ा सा ऊंचा उठना, आप थोड़ा सा एलिवेट होना मतलब कि लैंड से थोड़ा सा ऊंचा उठना, ठीक है, अगर हमारा सी लेवल ये है, तो अगर ये बोल रहा है थोड़ा 300 मीटर का एलिवेशन है, इसका मतलब सी लेवल से 300 मीटर ऊपर की हाइट पे है। ओके, इरोडेड मतलब कि उसको पूरी तरीके से वो कर लेना, पूरी तरीके से इरोजन कर लेना, उसका सारा प्लेन्स का सारा फर्टिलिटी को बहा कर ले जाना, इरोड कर देना। अंडरस्टूड? Moving on, plains are narrower in the west, and if you will see Europe, अगर आप यूरोप को देखो तो आपको क्या मिलेगा, जो प्लेन है वो नैरो है वेस्ट की तरफ, and then it stretch eastwards, there it get broaden, ठीक है, हम लोग स्पेन से देखते हैं कि प्लेन क्या है, स्पेन से हम लोग देखते हैं कि पतला सा नैरो प्लेन है, और फिर रशिया में जाकर वो क्या हो जाता है, बहुत इलाबोरेट हो जाता है, ऐसे ही है ना यूरोप का। So it get broaden up until it reaches the greatest width, और जब ये सबसे ज्यादा ब्रॉड कहां पर हो जाता है, वेस्टर्न रशिया में जाकर सबसे ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। फार्मिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लोग हमें यहाँ पर मिलते हैं। नाउ कम्स द सेंट्रल हाईलैंड। Okay, now south of the central plain of Europe, अब central plain जो था उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलता है, सेंट्रल हाईलैंड्स मिलते हैं। ओके, हाईलैंड्स में हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर we will find plateaus and mountains here. What is plateau? Plateau is tabletop like structure, and what is mountain? Mountain is an elevated structure. ओके, नाउ इट इज ऑफ मीडियम एलिवेशन, और ये सारा क्या है, मीडियम हाइट का है। दिस इंक्लूड्स मेसाटा सेंट्रल ऑफ स्पेन, स्पेन में हमें मेसाटा सेंट्रल मिलता है, द सेंट्रल मासिफ एंड द वॉइसेस इन जर्मनी, इन फ्रांस
the Black Forest and the Harz Forest mountain in Germany, and then we have entries in Belgium, Bohemian Plateau in the Czech Republic. Okay, these are the things that we find here. Okay, moving on. यूरल माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड, आपको पता है यूरोप के ईस्टर्न साइड पर यहाँ पर क्या है, हमारा यूरल माउंटेन है, और ये बना हुआ है ओल्ड माउंटेन सिस्टम का। ठीक है, इसका मतलब ओल्ड माउंटेन सिस्टम मतलब इसके पास ओल्ड रॉक्स है और इसके पास क्या है, कोल का डिपॉजिट है इस माउंटेन में। ओके ना, ब्रॉडन होना मतलब बच्चा, ब्रॉडन होना मतलब कि फैलना, ब्रॉड होना, खुलना। ओके, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगी। यहाँ से दो रिवर फ्लो करती है, राइन एंड रोन फ्लोज इन दिस रीजन, और इस रीजन से हमें दो रिवर मिलती है। Okay, now comes the Alpine mountain system. Moving on, the Alpine mountain system are young fold mountain. ये young fold mountain मतलब क्या है, ये अभी भी बन रहा है। It is continuously rising. ये अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी ये बनता जा रहा है, जमीन से उठता जा रहा है। Okay. ओके, नाउ इट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, और ये कहाँ कैसे फ्लो करता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ईस्ट हमारा इधर है, वेस्ट हमारा इधर है, सो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। नाउ हियर वी फाइंड सीरीज ऑफ माउंटेन्स। यहाँ एल्पाइन माउंटेन सिस्टम में हमें एक लंबा सीरीज ऑफ माउंटेन्स कुछ मिलते हैं जो लाइज करते हैं, लाइज साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड द कैस्पियन सी। अटलांटिक ओशन कैस्पियन सी के बीच में हमें ये माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ दे हैव स्टीप स्लोप्स। स्टीप मतलब सकरा, स्टीप मतलब ये ऐसा स्लोप है इसका, ऐसा स्लोप नहीं है जिसमें आप आराम से चढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा स्टीप स्लोप है। नैरो डीप वैलीज, हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, नैरो डीप वैलीज मिलते हैं। ओके, हाईली जैग्ड पिक, जैग्ड मतलब ब्रोकन, जैग्ड मतलब ब्रोकन, और इसकी जो पीक्स है, जो चोटी है, वो क्या है, इस माउंटेन्स की ब्रोकन चोटीज है। ऐसे माउंटेन है, ब्रोकन चोटीज है, एक चोटी नहीं है। ओके, नाउ कम्स द बच्चा, प्लीज यू कैन गो अहेड। जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकेंड लाइन को फिर से आप देख सकोगे। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन सेशन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, थैंक यू सो मच। माउंटेन सिस्टम इंक्लूड्स, यहाँ पर हमें कौन कौन से माउंटेन सिस्टम मिलते हैं, द कैटाबियन माउंटेन। ध्यान से अब सब लोग सुनेगा, कोई भी अभी लिखेगा नहीं। ठीक है, अगर आप लोग समझोगे तब लिखना। ठीक है, नाउ यहाँ के जो माउंटेन सिस्टम है, एल्पाइन माउंटेन सिस्टम में कौन सा माउंटेन आता है, एल्पाइन माउंटेन सिस्टम में हमें मिलता है कैटाबियन माउंटेन जो नॉर्दर्न स्पेन में है। वी हैव सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा जो स्पेन में है। देन वी ऑल्सो हैव प्रेनीज देयर एंड Alpines. Okay, now I will tell you कहाँ पर ये है। ये मैप आपको दिख रहा है, ज्यादा परेशान मत होइएगा अगर मैम बहुत खोच मैम दिख रहा है, नहीं, आपको बस देखना है ये हमारा स्पेन है, ये हमारा स्पेन है, और ये हमारा फ्रांस है, हमारा फ्रांस है। हमें प्रेनीज माउंटेन कहाँ पर मिलेगा, दिस इज अ प्रेनी माउंटेन। यहाँ पर हमें कौन सा माउंटेन मिलेगा, प्रेनीज माउंटेन। ठीक है, प्रेनीज माउंटेन आप लोगों को मिल गया। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड माउंटेन, दैट इज सियारा माउंटेन। हमारा सियारा नावेडा माउंटेन कहां पर है हमारा, दिस इज सियारा नावेडा माउंटेन, सियारा। ओके, देन और हमारा एक माउंटेन कौन था, हमारा एक और माउंटेन कौन था, कैटाबियन माउंटेन। कैटाबियन माउंटेन हमारा कहाँ है, दिस इज कैटाबियन माउंटेन, कैटाबियन माउंटेन। ओके, can you have you understood these three mountains?
Okay, the Pyrenees Mountain, the Caribbean Mountain, and the Sierra Nevada Mountain. Have you guys got this? Please now. Yes, you go ahead. You can ask me anything, and please tell me, have you understand these mountains? Have you got these mountains? हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैंटाबियन माउंटेन, सियारा नेवाडा माउंटेन, प्रेनीज माउंटेन। ये तीन माउंटेन आप लोगों को मिल गया यहाँ से। प्रेनीज आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कार्टेनबियन माउंटेन कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड सियारा इसके टिप पे है, ठीक है, स्पेन में है। ये तीनों माउंटेन कहाँ पर है, ये स्पेन में है। ये हमारा स्पेन का पार्ट है, ये स्पेन में। अंडरस्टूड। नाउ मूविंग अहेड वी हैव एल्पिनीज माउंटेन। एल्पिनीज माउंटेन कहाँ पर है, यहाँ पर हमें एल्पिनीज माउंटेन मिलता है, इटली में। Alpine mountain. Okay, we find Alpine mountains extending southwards in the Italy. ऐसे करके Alpine mountain जाता है इटली में। Understood? Now, okay, I will go do Carpathian. बेटा Carpathian नहीं है, Carpathian एक अलग mountain है। अभी हम लोग Carpathian नहीं कर रहे बच्चा, अभी we are doing Cantabrian mountain. Cantabrian, Cantabrian, Cantabrian माउंटेन और कार्पेथियन माउंटेन दोनों अलग अलग है। ओके ओके, जैक्ड मीन्स ब्रोकन, कार्पेथियन माउंटेन अलग अलग है। अभी हम लोग कर रहे हैं स्पेन में हमें मिलता है कार्पेथियन माउंटेन। ओके, मूविंग अहेड, नाउ वी विल डू ऑन द ईस्टर्न साइड 2 ब्रांचेस। अब हमें जो यहाँ पर हमारा एल्पिनीज माउंटेन, देखिए आप एल्पिनीज आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, एल्पिनीज, प्रेनीज आप लोग को दिख रहा है, कैंटाबियन हम लोग को कहाँ पर मिला था, यहाँ पर, एंड सियारा नेवाडा कहाँ पर है, यहाँ पर। सब लोगों को ये समझ में आ गया। नाउ कम्स ऑन द ईस्टर्न साइड, अगर ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये माउंटेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है। jagged means broken, everyone, jagged means broken. Okay, now ये माउंटेन 2 हिस्सों में टूट जाता है। One is the Carpathian mountain and second is the Balkan mountain. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बाल्कन माउंटेन, यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्पेथियन माउंटेन। अभी जो बच्चे ने पूछा था, जानवी ने। ओके, नाउ द कार्पेथियन माउंटेन कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में, और बाल्कन माउंटेन हमें बुल्गारिया में मिलता है इस जगह पर। अंडरस्टूड एवरीवन? मूविंग अहेड, द डियानिक एल्प्स, डियानिक एल्प्स। अभी आप लोगों ने चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सब लोग एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने किया कि हम लोगों को प्रेनीज माउंटेन मिलता है स्पेन में। वी हैव फाउंड द कैंटाब्रियन माउंटेन, कैंटाब्रियन माउंटेन यहाँ पर। देन वी हैव फाउंड सियारा माउंटेन यहाँ पर। ओके, दिस फिनिश। देन वी हैव एल्पाइन माउंटेन यहाँ। ओके, साउथ वेस्ट इन द इटली, इटली में हमें एल्पाइन माउंटेन मिल रहा है। नाउ एल्पाइन माउंटेन 2 पार्ट में टूटता है, कार्पेथियन माउंटेन एंड द बाल्कन माउंटेन। बाल्कन माउंटेन आपको दिख रहा है बुल्गारिया, इस जगह पर बुल्गारिया में, एंड कार्पेथियन माउंटेन हमें कहाँ मिलता है, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया में हमें मिलता है कार्पेथियन माउंटेन। Understood everyone? Now comes the Dianic mountain, Dianic Alps, ये है Dinaric Alps. Okay, this runs southward into the Balkan Peninsula. ये Balkan Peninsula में ऐसे करके रन कर रही है, ये है Balkan Peninsula और यहाँ पर वो रन कर रही है Dianic Alps. Okay, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं Dinaric Alps, ठीक है, समझ गए आप लोग। नाउ कम्स द पिंडुस माउंटेन, ठीक है। पिंडुस माउंटेन को मैंने देखो ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ बड़े में दिखाया है ताकि आप लोग पिंडुस माउंटेन को कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर वी हैव पिंडुस माउंटेन, यू कैन सी हियर, दिस इज पिंडुस माउंटेन। एवरीवन हैज गॉट पिंडुस माउंटेन इन द मैप, पिंडुस माउंटेन। Everyone, please tell me, everyone has got the Pindus mountain?
राइट इट एज क्विकली एज पॉसिबल कि आप लोगों को पिंडस माउंटेन मिल गया कि नहीं मिला। Yes, okay, Akhilesh Kumar, thank you so much. You have got the Pindus Mountain. ठीक है. Now comes Mount Blake is the highest peak in the Alps. अब ये जो हमारा Alps है ना, यहीं पर हमारा क्या है, Mount Blake. ये हमारा माउंट ब्लेक है और ये एल्प्स का सबसे ऊंचा पीक है। पूरा यूरोप का ये सबसे ऊंचा पीक नहीं है बच्चा। देयर कैन बी टू काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन यूरोप एंड हाईएस्ट पीक इन एल्प्स। तो ये एल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक इज माउंट ब्लेक। ये कौन सा माउंटेन है, माउंट ब्लेक। ओके, now let's move forward. Now this is, as you can see, this is Mount Blake. ओके, अब आप पूछोगे मैम यूरोप का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, यहां पर बच्चा आप लोग को मिलेगा माउंट एल्ब्स इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। ओके, मूविंग अहेड विथ ओकेजनल वोल्केनिक इरप्शन। अब यूरोप में क्या है, कुछ एरिया में जो इटली का एरिया है, जो ऐसे लटका हुआ रहता है, आप लोग सब लोग देख सकते हो मैप में, इटली का एरिया अगर मैं आपको बड़े मैप में दिखाऊं तो ये वाला एरिया, ये जो लटका हुआ एरिया इस इटली का एरिया, ठीक है। इसी को मैंने आपको बड़े करके यहाँ पर दिखाया है। इटली के एरिया में हमें बहुत सारा क्या मिलता है सॉरी, हमें क्या मिलता है, बहुत सारा वोल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं जो क्या हो रहे हैं, अभी भी बिल्ड किए जा रहे हैं। और वो सारे माउंटेन्स कौन है, माउंट एटना, you can see Mount Etna here, Mount Etna, Mount Vesuvius, Mount Vesuvius, आप देखो यहाँ पर इटली में Mount Vesuvius, Mount Etna and Stromboli, Mount Stromboli, here we have Mount Stromboli. Okay, now these are the three mountains जो हमें यहाँ मिलते हैं, जो अभी भी माउंटेनिक इरप्शन के वजह से, अब देखो कभी भी कोई माउंटेन फूटेगा और उससे अगर अंदर से लावा निकला, ये लावा ऊपर में आकर इसके ऊपर गिरेगा और ये क्या हो जाएगा, ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो इसकी हाइट जब यहाँ पर थी, जब लावा गिरा तो इसकी हाइट क्या हो गई, ये हो गई। फिर से लावा गिरेगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। Now there is a question by Janvi that what is the spelling of Pindus? Now देखो बच्चा, Pindus is a proper noun, तो आप Pindus भी लिख सकते हो, आप Pindhus भी लिख सकते हो, there is no problem, okay, क्योंकि ये proper noun है। आप जैसे अगर मुझे मन हो जानवी लिखने का तो मैं VI भी लिख सकती हूँ, VEE भी लिख सकती हूँ, V ही उसे पढ़ा जाएगा, ये अप टू अस है, ठीक है। नाउ आई विल प्रेफर पिंडस, आई विल प्रेफर कि हम लोग PINDUS लिखें, क्योंकि जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखने में फायदा है। ओके, सो आई प्रेफर PINDUS, वैसे आपका दोनों ही आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा। Okay, thank you Vinod Kumar for clearing it. Moving ahead, the Caucasus Mountain. Now the Caucasus Mountain is here. ठीक है, जहां पर एशिया से जहां पर ये मिल रहा है, आप देखो ब्लैक सी के जस्ट बगल में ये है हमारा कॉकेशियस माउंटेन और इसके नीचे क्या आ जाता है, एशिया आ जाता है। सो दिस लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप एंड इट इज बिटवीन ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में हमें कॉकेशियस माउंटेन मिलता है और यहाँ का सबसे, यहाँ पर हमें मिलता है कॉकेशियस रेंज में माउंट एल्ब्स विच इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। Understood everyone? Now comes the last topic of today's session, that is rivers and lake. Okay, now this is very easy, very easy. River system जो यूरोप का है, it is divided into three division है यहाँ पर, ठीक है। वो rivers जो northwards flow कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड्स मतलब वैसे रिवर्स जो ऊपर नॉर्थवर्ड फ्लो कर रहे हैं वैसे रिवर्स। सेकेंड इज वो रिवर्स जो वेस्टवर्ड फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अंडरस्टूड। एंड वो रिवर्स जो साउथ की तरफ आ रहे हैं,
ठीक है, ये हमारा 3 रिवर सिस्टम है। हमने ईस्टवर्ड नहीं लिखा, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो हम लोग ईस्टवर्ड नहीं लिखते हैं, क्योंकि ईस्टवर्ड में हमें बस एक रिवर मिलता है और रिवर नहीं है। ईस्टवर्ड फ्लो करने वाला सिर्फ एक रिवर है और उस रिवर का नाम क्या है? दानुबे, दानुबे रिवर। अंडरस्टूड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिवर ड्रेनिंग नॉर्थवर्ड। सबसे पहले हम लोग करेंगे नॉर्थवर्ड आने वाला रिवर। ये क्या होते हैं? ये छोटे रिवर्स होते हैं और बहुत स्विफ्टली फ्लो करते हैं, आराम से स्मूथली फ्लो करते हैं स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स पे। स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स कहाँ था? हमारा ऊपर में नॉर्वे स्वीडन वाला एरिया, वहां पर ये रिवर्स हमें मिलते हैं जो नॉर्थवर्ड उस तरफ फ्लो करते हैं। ओके, एंड इस रिवर में इतना फ्लो होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकती है। Understood? Second comes the westward flowing river. The west flowing river. Now this gets water from the Alps. Alps के region से इसको westward rivers को पानी मिलता है और ये rivers कौन कौन से हैं? Rhine, Po, Rhone, Weser, Elbe, Oder. Okay. Moving on, you can see here, you can see westward. Now आपको यहाँ पर Rhone दिख रहा है westward, Po दिख रहा है, श्राइन दिख रहा है, राइन दिख रहा है। ये सारे रिवर्स कहाँ जा रहे हैं? ये सब वेस्टवर्ड, वेस्टर्न हाफ पे फ्लो कर रहे हैं। ओके, नाउ ईस्ट नॉर्दर्न ऊपर वाले में हम लोगों को बहुत सारे रिवर्स जाते हुए दिख रहा है, जैसे कि डॉन, ये सारे रिवर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द साउथ फ्लोइंग रिवर्स। साउथ फ्लोइंग रिवर्स आर नॉट यूजफुल। ठीक है, जो पहले वाला रिवर था वो यूजफुल था, ये रिवर्स नहीं यूजफुल होते क्योंकि ये ठंडा आने पर विंटर में फ्रीज कर जाते हैं। Understood everyone? Now the Volga is the longest river. If you will see in the map, Volga कहाँ से आता है? कैस्पियन सी से आता है और नॉर्थ की तरफ जाता है और आप इसे देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। Okay, and this drains into the Caspian Sea और ये इसकी पानी, इस रिवर का पानी कहाँ मिल जाता है? कैस्पियन सी में आके मिल जाता है। ओके, मूविंग अहेड, साउथ फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे कि वोल्गा, डॉन, डिनिस्टर या फिर आप निस्टर्स भी बोल सकते हो, नाइपर एंड ड्राइवा। Okay, now only east flowing river is river Danube. एक ही रिवर है जो ईस्ट फ्लो करता है, वो है रिवर दानुबे। ओके, और ये किस में जाकर अपना पानी खाली करता है? ये रिवर अपना पानी खाली करता है, देखिए आप, ये दानुबे रिवर है। ओके, ये रिवर कहाँ अपना पानी खाली करेगा? ब्लैक सी में पानी खाली करेगा। अंडरस्टूड। ड्रेन मतलब बच्चा, ड्रेन मतलब पानी खाली करना अपना, जैसे कि पानी खाली भी नहीं, ये नहीं कि पूरा रिवर का पानी खाली हो जाता है। आप लोग को पता है ना, सारा रिवर जाके कोई ना कोई एक बड़े वाटर बॉडी में मिलता है। ओके, सो वैसे ही ये जो रिवर है, ये एक रिवर है कि एक बड़े सी में जाके मिल जाता है, जैसे कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ओके, इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम एल्प्स और ये भी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एल्प्स से। द बिगेस्ट लेक, अब अंडरस्टूड, व्हाट इज अ लेक? लेक इज अ वाटर बॉडी, वैसा वाटर बॉडी जो सारी तरफ से पानी से सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड, सराउंडेड बाय by lands all the sides, लैंड से सराउंडेड होता है ऑल साइड्स पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लेक। अगर आप देखो, कैस्पियन सी इज अ लेक क्योंकि ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? लैंड से सराउंडेड है और ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट लेक है, सबसे बड़ा लेक है। इसका इस एरिया में इनलैंड ड्रेनेज होता है, जैसे कि अंदर का रिवर आकर इसमें मिलता है। दिस लाइज बिलो सी लेवल, ये जो रिवर है ये सी लेवल से नीचे है और ये इसमें कुछ रिवर्स अपना पानी आकर मिलाते हैं। ओके, अब ये हालांकि एक लेक है लेकिन हमने इसे सी कहा है क्योंकि इसका पानी सॉल्टी है। ओके, इसका पानी क्या है?
salty है. Understood? Now with this, I have come to an end of my session. Thank you so much, all of you. Thank you so much for joining in. Thank you so much for staying with me. And I really enjoy your session. And I will meet you once again, and I will discuss all the chapters of your class 7th का मैं सारा geography का chapters करूंगी. Along with geography, I will be coming up history, English and all other subjects also. So geography का आज हम लोगों ने कौन सा chapter complete किया? Chapter 10. I will be bringing a session जिसमें मैं question answers discuss करूंगी. I will give you sample question paper also. I will give you मैप में आप लोगों को मैप मार्किंग कैसे करना है वो भी. सो नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारा मैप मार्किंग का क्लास होगा, मेक श्योर कि आप मैप लेकर बैठे हो. नाउ थैंक यू सो मच. यू गाइज वर वेरी patient. You guys were very kind and generous. So shower your love. Be a lovable person as you are. Thank you so much for joining in. I will be meeting you very soon with my next session. Till then, bye bye. Thank you.